Dear students, a very warm welcome to my Arabic learning class. This is lesson 18. So far you have learnt 170 words of Arabic language. You also have learnt 76 types of sentences. In other words, language structures. Out of 76 type of sentences, we are going to revise only 6 type of sentences which you read in lesson 17. And these sentences are: who is coming from Mumbai? Man qadimun min Mumbai. जवाब क्या है? Ahmad is coming from Mumbai. Ahmad qadimun min Mumbai. How is he coming? Kaifa huwa qadimun? He is coming by car. Huwa qadimun bis sayyara. Is he coming by bus? Hal huwa qadimun bil hafila? No, he is coming by car. La, huwa qadimun bis sayyara. And here I must acknowledge that your progress is very good. This is just 18th lesson and you are able to read and understand complex sentences. I urge you to keep on revising time and again previous lessons. And also, you must speak Arabic with your classmates. In this lesson, we are going to focus on nominal sentence, use of genitive or possessive pronouns. In Arabic, we say al-murakkab al-idhafi. As a subject, noun, adjective, active participle as a predicate. This lesson also has 6 sections. So let's get started. Dear students, this is the first section. As usual, we are going to do the revision. Revision of what you have already learnt in lesson 16 and 17. 10 words in each lesson. Now it is 20 lessons, 20 words. So we are going to revise. And I will do the revision, masculine and feminine together. Yani I will use the word, pronounce the word, masculine and feminine together. Waqifun, waqifatun. Waqifun, masculine. Waqifatun, feminine, standing. Jalisun, jalisatun. Jalisun, sitting, masculine. Jalisatun, sitting, feminine. Dhahibun, dhahibatun. Dhahibun, masculine. Dhahibatun, feminine, going. Naimun, naimatun. Naimun, masculine. Naimatun, feminine, sleeping. Ayyub, ayyatu, ayyub, masculine. Ayyatu, feminine, which. Ila, to. Qadimun, qadimatun. Qadimun, masculine. Qadimatun, feminine. Coming. Hadirun, hadiratun. Hadirun, masculine. Hadiratun, feminine. Present. Ghaibun, ghaibatun. Absent. Ghaibun, masculine. Ghaibatun, feminine. Fahimun, fahimatun. Fahimun, masculine. Fahimatun, feminine. Understanding. Kalamun, talk. Be, by. This was revision of Arabic words in Arabic. Now we are going to revise from English. जब मैं अंग्रेजी का कोई सेंटेंस पढ़ूंगा तो एक पॉज दूंगा ताकि आप अपना तर्जमा कर लें, अपना ट्रांसलेशन कर लें, और फिर उसके बाद मैं खुद अरबिक में बताऊंगा कि उसका करेक्ट क्या है, फिर आप कंपेयर करें. स्टैंडिंग मैस्कुलिन, वाकिफुन. स्टैंडिंग फेमिनिन, वाकिफतुन. सिटिंग मैस्कुलिन. जालिसुन, सिटिंग फेमिनिन.
जालिसतुन going masculine, ज़ाहिबुन going feminine, ज़ाहिबतुन sleeping masculine, नाइमुन sleeping feminine, नाइमतुन which अय्यो masculine, which feminine, अय्यतुन two, इला coming masculine, قادم coming feminine, قادمة present masculine, حاضر present feminine, حاضرة absent masculine, غائب understand masculine, फाहिमुन understand feminine, फाहिमतुन talk, कलामुन by be। डियर स्टूडेंट्स, हमने बड़े अच्छी तरीके से इसका रिवीजन किया है एंड आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द रिवीजन बिकॉज ओनली बाय रिवीजन we can memorize the word, we can use the word. And now we are coming to the second section of the lesson, which is always meant for the new vocabularies. So the first word, and you must note that I always teach you masculine and feminine both. मैं आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साथ साथ सिखा रहा हूं ताकि, और बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, हजारों बार उसको सुनेंगे, तो फिर वो आपके जहन में अलग अलग होगा और फिर गलती के चांसेस कम होंगे, और जब आप गलती करेंगे तो आप उसको सही भी कर लेंगे। तो पहला वर्ड है ओपन, मैस्कुलिन मफ्तूहुन, मफ्तूहुन। अब इसकी स्पेलिंग भी आपको मैं बता रहा हूं और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप अरबी खुद से पढ़ना सीख लें। आप इस सेक्शन में, जो सेकंड सेक्शन है, हमेशा नोट करते होंगे कि मैंने रोमन में भी उसकी स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन लिख रखा है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अरबी पे डिपेंड होते जाएं और रोमन से बचते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपना उसके ऊपर निर्भरता कम करते जाएं। ओपन, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, मीम के ऊपर फतहा, फा के ऊपर सुकून, मफ, ता के ऊपर ज़म्मा, वाव के ऊपर सुकून, मफ्तू, हा के ऊपर तनवीन, मफ्तूहुन। ओपन फेमिनिन, मफ्तूहतुन, मफ्तूहतुन। जैसे आपने मफ्तूहुन का स्पेलिंग किया है वैसे मफ्तूहतुन का कर लीजिए। मीम के ऊपर फतहा, फा के ऊपर सुकून, मफ, ता के ऊपर ज़म्मा, वाव के ऊपर सुकून, मफ्तू, हा के ऊपर फतहा और राउंड ता के ऊपर तनवीन, मफ्तूहतुन। ओपन। ब्रोकन, मैस्कुलिन, मकसूरुन, मीम के ऊपर फतहा, काफ के ऊपर सुकून, मक, सीन के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, मकसू, रा के ऊपर तनवीन, मकसूरुन। ब्रोकन फेमिनिन, मकसूरतुन, मीम के ऊपर फतहा, काफ के ऊपर सुकून, मक, सीन के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, मकसू, रा के ऊपर फतहा, राउंड ता के ऊपर तनवीन, मकसूरतुन। ब्रोकन। बिजी, ये बहुत अच्छा वर्ड है और जिंदगी में आपको बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मैं मशगूल हूं, वो मशगूल है, आप मशगूल हैं, और हम हिंदी में भी मशगूल ही इस्तेमाल करते हैं जिसके माने होता है ऑक्युपाइड। बिजी, बिजी मैस्कुलिन, मशगूलुन, मशगूलुन, मीम के ऊपर फतहा, शीन के ऊपर सुकून, मश, गैन के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, मशगू, लाम के ऊपर तनवीन, मशगूलुन। बिजी या ऑक्युपाइड फेमिनिन, मशगूलतुन, मीम के ऊपर फतहा, शीन के ऊपर सुकून, मश,
गैन के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, मशगू, ला के ऊपर फतहा और ता के ऊपर तनवीन, मशगूलतुन। और आप ये भी नोट करते चलें कि मैस्कुलिन में राउंड ता नहीं होता और फेमिनिन में राउंड ता। तो जब किसी भी मैस्कुलिन को आप फेमिनिन बनाना चाहें, उसका एक कायदा होता है, तो राउंड ता बढ़ा देते हैं। हंग्री, ये भी वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। मैं भूखा हूं, वो भूखा है, आप भूखा हैं, क्या भूखे हैं, ये इस तरीके के सेंटेंस, और ये बेसिक में आता है। हंग्री। जौआनुन, जौआनुन, जीम के ऊपर फतहा, वाव के ऊपर सुकून, जौ, आयन के ऊपर फतहा और लॉन्ग वावेल अलिफ, जौआ, नून के ऊपर तनवीन, जौआनुन। हंग्री फेमिनिन, जौआनतुन, जीम के ऊपर फतहा, वाव के ऊपर सुकून, जौ, आयन के ऊपर फतहा, लॉन्ग वावेल अलिफ, जौआ, नून के ऊपर फतहा, राउंड ता के ऊपर तनवीन, जौआनतुन। हंग्री। थर्स्टी, ये भी बहुत यूज करते हैं कि मुझे प्यास लगी है, क्या आपको प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, आर यू थर्स्टी। आतशानुन, मैस्कुलिन के लिए क्या है, आतशानुन। देखिए ते नहीं है, तो है, आतशानुन। आयन के ऊपर फतहा, तो के ऊपर सुकून, शीन के ऊपर फतहा, फिर लॉन्ग वाविल, आतशा, नून के ऊपर तनवीन, आतशानुन। फेमिनिन के लिए थर्स्टी, आतशानतुन, आतशानतुन। आयन के ऊपर फतहा, तो के ऊपर सुकून, शीन के ऊपर फतहा और लॉन्ग वावेल अलिफ, आतशा, नून के ऊपर फतहा, राउंड ता के ऊपर तनवीन, आतशानतुन। डियर स्टूडेंट, ये आखिरी वर्ड था इस लेसन का, और ये वर्ड सीखते ही आपने 170 अरबी के ऐसे वर्ड सीखे हैं जो हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। ये ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिनको कभी आपको यूज़ करना हो, नहीं, ये तो आपकी कोई भी ज़ुबान हो, चाहे आप साइंटिफिक हो, मेडिकल हो, या जो भी हो, जो भी ज़ुबान, ये तो आपको ग्रामर में आना है, और ये बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों को बार बार याद करें, रिवाइज करें। अरबिक में एक मिसाल कहते हैं, अत-तकरार युअल्लिमुल हिमार। इसके माने क्या होता है कि बार बार रिपीट करने से गधा भी सीख जाता है। तो अगर इंसान बार बार रिपीट करेगा तो उसकी शान सोचे कि कितना उसको याद हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेक्शन 3, which is a grammar. In this lesson, we are going to learn and practice one grammatical component, and that is, in English we say genitive, sometimes we say possessive phrase या possessive pronouns. अरबिक में हम कहते हैं अल मुरक्कब अल इदाफी। ये मुरक्कब इदाफी क्या होता है, आप हिंदी में देखें, जैसे कहना हो राजू का कलम, शकुंतला का घर, तो ये जो रिश्ता पैदा किया जाता है, एक पोसेशन होता है कि पेन की मालिक वो हैं, घर की मालिक वो हैं। तो अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, पेन ऑफ राजू। तो जो लफ्ज पेन आया है ऑफ से पहले, उसको हम अरबिक में कहते हैं मुदाफ। क्या कहते हैं, जो ऑफ से पहले आया है, मुदाफ। अब हमने कहा पेन ऑफ राजू, तो पेन क्या हो जाएगा, ये मुदाफ, ऑफ छोड़ दीजिए, ये इदाफत है। राजू क्या हो जाएगा, मुदाफ इलैह, यानी उसकी तरफ उसका रिश्ता जोड़ा जा रहा है, मुदाफ इलैह। तो उसको क्या कहते हैं, पसेसिव प्रोनाउन या पसेसिव नाउन। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अरबिक में थोड़ी सी ये डिफिकल्ट है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पर एक स्पेशल ध्यान दें। हम पहले वाले वर्ड को क्या कहते हैं, मुदाफ, दूसरे वाले वर्ड को क्या कहते हैं, मुदाफ इलैह। तो जो पहला वाला वर्ड है, हमेशा याद रखिए, मुजाफ का जो, जिसको हम मुजाफ कहते हैं, जो पहला वाला है, उसके ऊपर कभी अलिफ लाम नहीं आएगा और उसके आखिर में कभी तनवीन नहीं आएगा, जो नूनेशन होता है। अभी आपको मैं मिसालों से इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ध्यान दिया तो एक ही बार में आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। द मुदाफ
will never accept article al and vowel at-tanween. The mudaf ilayh will be in genitive case. To understand well, carefully read the examples, and I will explain you in a very simple way, and I am sure you are intelligent, you will be able to understand that. Dear students, this is the fourth section of this lesson, and this is meant for practice of the genitive or possessive pronouns. ज़रा आप दिमाग लगा के सुनने की कोशिश करें और मैं उसको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको 5 मिसाल देता हूं। जैसे पहले मैं आपको एक बड़ा सिंपल मिसाल देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया बैतुन, जिसके माने होता है अ हाउस, पढ़ाया है रजुलुन, जिसके माने होता है अ मैन। दोनों को जब हम इकट्ठा लाते हैं और इसके अंदर एक तरीके का रिश्ता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि आदमी का घर, द हाउस ऑफ ए मैन। देखो अलग अलग थे, बैतुन मीन्स हाउस, रजुलुन मीन्स मैन, लेकिन हम बताने जा रहे हैं नहीं दोनों फ्रेज से, दोनों वर्ड से कि द हाउस ऑफ ए मैन, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपको कहना हो द हाउस ऑफ ए मैन, तो द हाउस क्या हो जाएगा, बैतो। अब इसको हम बैतो को क्या कहेंगे, मुजाफ है। इस पहले मुजाफ पर कभी भी अल नहीं लगेगा, जो आर्टिकल मैंने आपको सिखाया है। मैंने एक लेसन में आपको सब बताया था कि बैतुन इसके माने होता है अ हाउस, और जब उसके ऊपर अल का ऐड कर देते हैं कि अल बैतो, तो उसके माने हो जाता है द हाउस। बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और यह भी बताया था कि बैतुन नकरा है और अल बैतो मारिफा है। फिर मैं वही, आप उस लेसन को जरूर याद कर लीजिएगा। द हाउस ऑफ ए मैन, it is incomplete sentence, it is not complete sentence. The house of a man, it still remains something to listen. What is happening? It is a new or big or small something. The information about the house is missing, so this is an incomplete sentence. Baito rajulin, baito मुजाफ, रजुलिन मुजाफ इलैह। तो बैतो के ऊपर देखिए कभी भी तनवीन नहीं आएगा, आखिर में बैतुन नहीं कहेंगे, बैतो। इसके ऊपर अल नहीं लगेगा, अल बैतो रजुलिन नहीं कहेंगे। अब क्या कह सकते हैं, दूसरे मिसाल में आइए, बैतुर रजुले। देखिए पहला बैत तो बचा है और उसी कंडीशन में बचा है, इंटैक्ट, लेकिन जो मुजाफिले था उसके ऊपर अल लग गया है, बैतुर रजुले। तो जो ये अल लगाया है उसके मीनिंग में देखें क्या फर्क, द हाउस ऑफ द मैन। पहले वाले में क्या था, द हाउस ऑफ ए मैन। अब यहां क्या हो रहा है, द हाउस ऑफ द मैन, अल लगा तो उसके द की मीनिंग पैदा हो गया, बैतुर रजुले। इसका मतलब क्या है कि मुजाफिले पर अलिफ और लाम आ सकता है, और यह भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब हम इसी इनकम्प्लीट को देखो कंप्लीट कैसे बनाते हैं। द हाउस ऑफ द मैन इज ओपन। ओपन अभी आपने पढ़ा है इसी लेसन में। देखिए द हाउस ऑफ द मैन, उसकी अरबी क्या हो गया, बैतुर रजुले, इज ओपन मफ्तूह। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट काइंड कि मुजाफिले हम किसकी तरफ कर रहे हैं, ऐसे नाउन की तरफ कर रहे हैं कि जिसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है। बैतुर रजुले मफ्तूह, द हाउस ऑफ द मैन इज ओपन। सेकेंड सेंटेंस, द हाउस ऑफ राजू इज बिग, बैतो राजू कबीरुन। अब देखिए पहले में हमने बैत का निस्बत और रजुल की तरफ किया था, और दूसरे में एक प्रॉपर नाउन राजू, शकुंतला, अहमद, मोहम्मद, इन नामों की तरफ हो रहा है। बैतो राजू कबीरुन, द हाउस ऑफ राजू इज बिग। अब थर्ड सेंटेंस देखें, माई हाउस इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। माई हाउस की अरबी क्या है, बैती। अब उसके बाद क्या, ओल्ड कदीमुन, ब्यूटीफुल जमीलुन। माई हाउस इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, बैती कदीमुन व जमीलुन। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 3 तरीके की मिसाल दिया है। एक तरफ जो है अलिफ लाम लगा हुआ उसकी तरफ मुजाफ है, दूसरे मिसाल में प्रॉपर नाउन की तरफ किया है,
और तीसरी मिसाल में वो पर्सनल सफिक्सेस लगा करके। तो ये 3 तरीके होते हैं चीज़ों को कहने के। ये था मैस्कुलिन, और इसी के ऊपर हमने फेमिनिन को भी बनाया है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब आइए हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे द कार ऑफ ए मैन, सय्यारतो रजुलिन, सय्यारा अरबिक में मुअन्नस है, और वो आदमी की कार। देखो द कार ऑफ अ मैन, तो ऑफ से पहले क्या आया है? कार, तो वो जाएगा सय्यारा, ये मुअन्नस है। इसके ऊपर कभी अलिफ लाम न लगाइएगा, और तुन न कहिएगा, सय्यारतो कह सकते न कहिएगा। सय्यारतो रजुलिन, द कार ऑफ ए मैन। सेकंड सेंटेंस देखिए, द कार ऑफ द मैन, जैसे ऊपर पढ़ा था सय्यारतुर रजुले, द कार ऑफ द मैन, इट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्या होगा। द कार ऑफ द मैन इज ओपन, सय्यारतुर रजुले मफ्तूहतुन। अब यहां एक चीज आपको सीखने की भी है कि ये मफ्तूहुन कहेंगे या मफ्तूहतुन कहेंगे। तो अरबिक के ग्रामर के हिसाब से जो मुजाफ होता है उसके हिसाब से ये गवर्न होगा। तो सय्यारतो यहाँ फेमिनिन है, इसीलिए यहाँ मफ्तूहतुन कहा, और ऊपर देखा था बैतों के लिए मैस्कुलिन लाया था, मफ्तूहुन कहा था मैंने। सय्यारतुर रजुले मफ्तूहतुन। आगे सेंटेंस देखें, द कार ऑफ राजू इज बिग, सय्यारतो राजू कबीरतुन। द कार ऑफ राजू इज बिग, सय्यारतो राजू कबीरतुन। माई कार इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, सय्यारती कदीमतुन व जमीलतुन। कितना बढ़िया सेंटेंस है। तो 5 मैस्कुलिन की मिसाल थी और 5 फेमिनिन की थी। अब आप देखिए छोटे छोटे जो ऊपर आपने नए वर्ड सीखे हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं, वरना तकरीबन मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। द डोर ऑफ द हाउस इज ब्रोकन, बाबुल बैते मकसूरुन। देखिए बाब मैस्कुलिन है, इसीलिए हम मकसूरुन लाए हैं। अब दूसरे में देखिए, द सुटकेस ऑफ शकुंतला इज ब्रोकन, शंततो शाकुंतला मकसूरतुन। अब ये शकुंतला की वजह से मकसूरतुन नहीं है, ये शंता की वजह से है, जो मुजाफ है उसकी वजह से। द सुटकेस ऑफ शकुंतला इज ब्रोकन, शंततो शाकुंतला मकसूरतुन। द मैनेजर ऑफ द बैंक इज बिजी। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। द मैनेजर ऑफ द बैंक इज बिजी, मुदीरुल मसरफे मशगूलुन, मुदीरुल मसरफ मशगूलुन। द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल इज बिजी, मुहासिबतुल मदरसते मशगूलतुन, मुहासिबतुल मदरसते मशगूलतुन। The son of the manager is hungry, the son of the manager is hungry. Ibnul mudire jawanun, Ibnul mudire jawanun. The daughter of the nurse is hungry. वही hungry है लड़की के लिए। देखिए, बिंतुल मुमर्रिदते जवानतुन, बिंतुल मुमर्रिदते जवानतुन। My neighbor is thirsty, जारी अतशानुन, माई गर्लफ्रेंड इज थर्स्टी, सदीकती अतशानतुन, सदीकती अतशानतुन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो मैं हर लेसन में नहीं लेकिन कभी कभी आपको ज़रूर बताता हूँ कि अरब इस तरीके से नहीं कहते हैं सदीकती अतशानतुन, वो कहेंगे सदीकती अतशाना, जारी अतशान। वो आखिर का जो वॉवेल होता है वो उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं और तमाम लोग इसको समझ जाते हैं। तो आप दोनों तरीके से अगर कहीं जाएं और लोग इस तरीके से बोल रहे हैं, जैसे हमने आपको सिखाया कि बाबुल बैते मकसूरुन, अरब कहेगा बाबुल बैत मकसूर, बाबुल बैत मकसूर। तो आपको ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मकसूरुन अतशानुन, ये स्टैंडर्ड अरबिक है, लेकिन प्रैक्टिकल में अरब जैसे बोलते हैं बाबुल बैत मकसूर, बाबुल बैत कबीर, बाबुल बैत सगीर, इस तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो चौथा सेक्शन आप पढ़ रहे थे ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी मौजूद है
तो इसको बार बार आप रिपीट करेंगे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं 100% श्योर हूं कि आपकी अरबी मुझसे भी बेहतर हो जाएगी। किसी से भी आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, हाउ मच एफर्ट्स यू कैन पुट इन। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 5th सेक्शन विच इज मेंट फॉर द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू अरबिक। और आप जानते हैं जब आप अंग्रेजी से अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो आपकी अरबी मजबूत होगी। आपका माइंड अरबी अल्फाज को ढूंढ करके निकाल करके लाएगा और सेंटेंस बनाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब मैं आपको ट्रांसलेशन कराता हूं तो अंग्रेजी का सेंटेंस बोल करके थोड़ा सा गैप दूंगा, आप उसमें अपना ट्रांसलेशन कर लें, फिर मैं खुद ट्रांसलेशन उसका कहूंगा, फिर उससे कंपेयर कर लें। हिज चेयर इज ब्रोकन, कुर्सीयुहु मकसूरुन, योर सूटकेस इज ब्रोकन, शंततुका मकसूरतुन, योर फेमिनिन सन, योर फेमिनिन, योर सन इज बिजी, इब्नुके मशगूलुन, माई सिस्टर इज बिजी, उख्ती मशगूलतुन, हिज नेबर इज हंग्री, जारुहु जवानुन, जारुहु जवानुन, योर डॉटर इज हंग्री, बिन्तुका या बिन्तुके जवानतुन, डॉक्टर्स सन इज थर्स्टी, इब्नु तबीब आतशानुन, whose daughter is thirsty, bintu man atshanatun, the door of your room is open, babu ghurfateka maftuhun, my friend's pharmacy is open, saydaliyatu sadiqi maftuhatun, the key of the lock is broken, miftahul qufl maksurun। डियर स्टूडेंट, मैं देख रहा हूं कि ये सेंटेंसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर कर दूं कि इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, इसमें कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है। सारे स्ट्रक्चर 4-4, 5, 10-10 बार आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन लेसन से इंजॉय कर रहे होंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट सेक्शन 6th, एंड दैट इज मेंट फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। हुज रूम इज ओपन, सवाल हो रहा है कि किसका कमरा खुला हुआ है। अगर आप ये सेंटेंस सीख लें कि किसका कमरा खुला है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं किसका घर खुला हुआ है, किसकी फैक्ट्री खुली हुई है, कौन सा एयरपोर्ट खुला हुआ, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए, हुज रूम, गुरफतु मन इज ओपन मफ्तूहतुन, हुज रूम इज ओपन, गुरफतु मन मफ्तूहतुन। और जब ये सवाल करें तो आपकी आंखों में सवाल लगे, ऐसा न लगे कि आप जवाब दे रहे हैं। गुरफतु मन मफ्तूहतुन, द रूम ऑफ अहमद इज ओपन। अभी देखिए पढ़ाया था कि गुरफतु अहमद, अहमद का कमरा खुला हुआ है। द रूम ऑफ अहमद इज ओपन, गुरफतु अहमद मफ्तूहतुन, इज द चेयर ऑफ अहमद ब्रोकन, इज द चेयर ऑफ अहमद ब्रोकन, हल कुर्सीयु अहमद मकसूरुन। देखो, इज द चेयर ऑफ अहमद, इज का तर्जुमा क्या है? हल, चेयर कुर्सी, चेयर ऑफ अहमद कुर्सी अहमद, ब्रोकन मकसूरुन, बार बार पढ़ रहे हैं। इज द चेयर ऑफ अहमद मकसूरुन, हल कुर्सी अहमद मकसूरुन। जवाब, यस, हिज चेयर इज ब्रोकन। यस के भी क्या है? नाम। और जब नाम कहें तो सर भी हिलाएं, नाम। कुर्सीयुहु मकसूरुन, हिज चेयर कुर्सीयुहु इज ब्रोकन मकसूरुन, नाम कुर्सीयुहु मकसूरुन। अब दूसरा सवाल, हु इज बिजी। आप पूछ सकते हैं कौन काम कर रहा है, कौन बिजी है, कौन भूखा है, किसको प्यास लगी है। इस तरीके से जितने सेंटेंस इसके पढ़ने के बाद आप बना सकते हैं। हु इज बिजी, मन मशगूलुन। देखिए, हु की अरबी क्या है? मन, बिजी मशगूल, तो मशगूल से पहले मन लाइए, सवाल बन गया। मन मशगूलुन, हु इज बिजी। अरब कहेगा, वो नहीं कहेगा मन मशगूलुन, अरब कहेगा मन मशगूल। माई फ्रेंड राजू इज बिजी। माई फ्रेंड अरबी सदीकी, सदीकी राजू मशगूलुन। माई फ्रेंड राजू इज बिजी, सदीकी राजू मशगूलुन।
Who is hungry? Man jaw'anun. The son of manager is hungry. Ibnul mudir jaw'anun. फिर सवाल, Is your brother thirsty? Hal akhuka atshanun. Is your brother hal akhuka thirsty atshanun. Is your brother thirsty? Hal akhuka atshanun. Yes, my brother is thirsty. Naam, akhi atshanun. Dear student, कितने बढ़िया बढ़िया और कितने बड़े बड़े सेंटेंस आपने बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैंने आपसे कहा कि अब तक आप 170 वर्ड सीख चुके हैं और इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाएं 170 में से, तो मैं 25-30 चीज़ों पर आप बना सकते हैं। अब आपकी अरबी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और मेहनत करेंगे। अब हम यहीं स्टॉप करते हैं। लेट्स कॉल इट ए डे। आपसे मुलाकात फिर अगले लेसन में होगी। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।